Okay, so in the last lecture, we studied about the types of inheritance in Java. Now, today we'll discuss about the, give me a moment. So today we'll discuss about the other things which are used in Java after inheritance, like method overriding. We'll discuss about the method overriding. So let's take a revision about the inheritance. So basically, inheritance is a phenomena in which your child class inherits the properties of the parent class, right? Parent class. So we can see this particular example that employee is a parent class, programmer is a child class, and programmer is inheriting the is a child class. So programmer is inheriting all the properties of the employee class, right? Then we studied about the types of inheritance. So first type of inheritance that we can implement in Java is a single inheritance, where there is one parent class and one child class, right? So we can see in the example that animal is a parent class, dog is a child class, and the keyword that we have used to make the relationship between these classes is extends, right? So automatically the dog class will inherit the eat function of the animal class, which means the dog class will have two functions: eat from the animal and bark from the itself, right? So if we declare the object of dog class, we can call both functions, bark and eat. Now the next type of inheritance is multi-level inheritance. It is also called as ladder type inheritance, where the parent class is having a child class, then the child class becomes the parent class and it is having a child class. So it's a kind of level kind of a structure can be created with it. So we can see in the diagram that class A is a parent class of class B, and then class B has become the parent class for class C. So basically the class B will have the properties of class A and class C will have the properties of class B as well as class A also. The third type of inheritance that we studied is hierarchical inheritance. So in a hierarchical inheritance, basically there is a one parent class and one parent class can have more than one child class. So the relationship can be defined as follows: like animal is a parent class, dog is a child class of animal, and cat is also a child class of animal. So animal is a parent class, it is having a two child class, dog and cat. Okay? Okay, so the next concept that we are going to study is called as overriding. So overriding is basically a feature in which the child class has a method which is already declared in the parent class, right? So suppose we can see this particular example that there is a child class animal. Animal has having a method move, and there is a parent class animal which is having a method move, and there is a child class dog which is also having a method move. It is a redeclared method in the dog class. Now what are the conditions for the overriding? That the child class should have a method which is already declared in the parent class and it is redeclared in the child class with the same name, same return type and same parameter, right? So the condition is already declared here. When a method in a subclass has a same name, same parameter and same signature with same return type, then it is called as method overriding. Now what will happen in the method overriding? जनरली क्या होता है कि जब आप इनहेरिटेंस डिफाइन करते हो, आपने ईट मेथड यहाँ पर बनाया, बाक मेथड यहाँ पे बनाया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ईट मेथड भी बना दूं डॉग के अंदर, तो क्या होगा कि जो पेरेंट क्लास वाला मेथड है वो चाइल्ड क्लास में ओवरराइड हो जाएगा. तो जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे और ईट फंक्शन को कॉल करोगे, सो इट विल कॉल इट्स ओन फंक्शन इंस्टेड ऑफ कॉलिंग टू द पेरेंट फंक्शन. ये अपने फंक्शन को कॉल करेगा. तो ओवरराइडिंग में बेसिकली क्या हो रहा है कि चाइल्ड अपने फंक्शन को कॉल कर रहा है और पेरेंट का जो फंक्शन है उसको ओवरराइड कर दे रहा है. और हमें चाहिए क्या? इनहेरिटेंस में हमें चाहिए ये होता है कि आपका जो पेरेंट का फंक्शन है वो एज इट इज रहे
और जो चाइल्ड का फंक्शन है वो उसको कॉल, चाइल्ड का जो ऑब्जेक्ट है वो उसको कॉल कर पाए, राइट? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरराइडिंग. सी द एग्जांपल. क्लास पेरेंट है जिसमें एक फंक्शन बनाया हुआ है आपने शो. अब आपने क्या किया हुआ है, एक चाइल्ड क्लास इसकी बनाई, तो आपने यहाँ पर शो वापस से डिक्लेयर कर दिया. नाउ इफ आई डिक्लेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, अगर मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, अगर मैं ये करूंगी, if I'll do this and if I call C1 is equal to show, what should be the output? Output यहाँ पर क्या generate होगा? Child show instead of parent show. Why? Because the show function is now overridden by the child class and earlier it was declared in the parent class, but अब जब आप child का object बनाओगे तो ये अपना nearest function call करेगी, और nearest function कौन सा होगा इसका अपना, तो ये वाला मैसेज आपको मिलेगा इसमें. ठीक है. नाउ लेट्स सी. यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया पेरेंट का, इससे शो को कॉल किया, तो मेरे को क्या मिलेगा, पेरेंट वाले शो का आउटपुट मिलेगा, यानी पेरेंट शो. उसके बाद मैंने क्या किया, अगर मैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने चाइल्ड का अगर ऑब्जेक्ट बनाया, इफ आई एम मेकिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड, अगर मैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ और फिर शो को कॉल करूंगी, तो ऑब्वियसली मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, चाइल्ड शो मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ओवरराइट हो चुका है. ठीक है. तो अभी इस ओवररिडन के कॉन्सेप्ट को हटाने के लिए आप क्या यूज करते हो, यू यूज अ सुपर कीवर्ड. सो देयर आर 3 यूजेस ऑफ सुपर कीवर्ड. सुपर कीवर्ड का फर्स्ट यूज क्या है कि सुपर कीवर्ड कैन बी यूज टू रेफर इमीडिएट पेरेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल. आपकी जो भी इमीडिएट पेरेंट क्लास है, इमीडिएट पेरेंट क्लास का मतलब क्या हुआ, सपोज ए इज अ पेरेंट क्लास और बी की चाइल्ड क्लास है, और उसके बाद फिर बी की चाइल्ड क्लास सी है, तो सी के लिए इमीडिएट पेरेंट कौन हुआ, बी, और बी के लिए इमीडिएट पेरेंट कौन हुआ, ए. ठीक है. तो अगर मैंने ए के अंदर कोई इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, तो इस वेरिएबल को रेफर करने के लिए बी क्लास क्या यूज कर सकता है, सुपर कीवर्ड यूज कर सकता है. तो अगर बी क्लास अपने अंदर लिखता है सुपर डॉट ए, तो ये एक्चुअली किसको रेफर कर रहा है, इस वाले इंटीजर ए को रेफर कर रहा है. सुपर का मतलब पेरेंट एंड ए इज अ इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ द पेरेंट क्लास. ठीक है. सेकेंड क्या है, सुपर कैन बी यूज टू इन्वोक द इमीडिएट पेरेंट क्लास मैथड. अब सपोज करो यहां पर मैंने एक मैथड बनाया हुआ है शो, ठीक है, और यहाँ पे भी एक मैथड बना दिया मैंने शो, यहाँ पे भी एक मैथड बना दिया शो. अब क्या हुआ, जो पेरेंट का मैथड था शो, वो चाइल्ड के मैथड ने ओवरराइड कर दिया. अब अगर मुझे पेरेंट का मैथड चाहिए तो मैं क्या लिखूंगी, सुपर डॉट शो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, सुपर का मतलब है इमीडिएट पेरेंट क्लास, मतलब ए, और शो क्या है, इसका इंस्टेंस फंक्शन, जो कि कहाँ डिक्लेयर हुआ है, पेरेंट में डिक्लेयर हुआ है. तो सुपर डॉट शो किसको कॉल करेगा, पेरेंट के शो फंक्शन को कॉल करेगा. सिमिलरली आपके पास थर्ड यूज है सुपर कीवर्ड का. अगर सुपर को आप एज ए फंक्शन ब्रैकेट यूज करते हैं, तो इट कैन बी यूज टू इन्वोक द इमीडिएट पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर. अगर आपने क्लास पेरेंट क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करा है, जैसे मैंने कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करा इंटीजर बी, ठीक है, अब मेरे को ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो बी क्लास में कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो कभी भी इनहेरिट नहीं होता. सो ऑलवेज रिमेंबर, if there is a constructor declared in the parent class, it will not be inherited by the child class. तो आपको क्या करना पड़ेगा, explicitly उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा. आप चाइल्ड क्लास में क्या लिखोगे, सुपर. अब क्योंकि कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज है, तो मैंने यहाँ पर एक पैरामीटर पास कर दिया. तो सुपर का मतलब है कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास, एंड 10 इज रिप्रेजेंटिंग द पैरामीटर विच इज रिप्रेजेंटिंग द पैरामीटर ऑफ पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर. तो इसका एग्जाम्पल हम प्रॉपर देखेंगे. लेट्स मूव अहेड. ओके, तो पहला हम यूज देख रहे हैं कि आपको पेरेंट क्लास का जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो कॉल करना है चाइल्ड क्लास में. तो आपने यहाँ पर पेरेंट क्लास बनाई हुई है जिसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है कलर, और कलर की वैल्यू डाली हुई है आपने व्हाइट. ठीक है. अब इस पेरेंट क्लास के लिए यू हैव डिक्लेयर्ड अ चाइल्ड क्लास डॉग, और डॉग में भी आपने एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी है विद सेम नेम कलर. इसका मतलब ये वाला जो वेरिएबल है वो इस वाले वेरिएबल से ओवरराइड हो गया. तो अब अगर मैं डॉग का ऑब्जेक्ट यूज करके कलर को डिस्प्ले कराऊंगी तो मुझे ब्लैक मिलेगा, मुझे व्हाइट नहीं मिलेगा. ठीक है. तो यहाँ पर एक फंक्शन बनाया हमने प्रिंट कलर.
इसमें एक तो सिंपल कलर डिस्प्ले किया। अब जब अगर सिंपल कलर डिस्प्ले करेंगे तो ऑब्वियसली ये नियरेस्ट कलर को कॉल करेगा, तो ये आउटपुट क्या डिस्प्ले करेगा, ब्लैक। अब इसके बाद मेरे को पेरेंट का कलर चाहिए, तो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले क्या किया, सुपर डॉट कलर। सुपर डॉट कलर मुझे आउटपुट में क्या देगा, व्हाइट, क्योंकि सुपर का मतलब है पेरेंट क्लास और कलर डॉट कलर आपने लिखा, इसका मतलब पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी। तो ये पेरेंट क्लास के कलर वाले वेरिएबल को कॉल कर रहा है। सो ऑब्वियसली आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, यहाँ पर व्हाइट मिलेगा। सो इट इज अ फर्स्ट यूज ऑफ सुपर कीवर्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट यूज ऑफ सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड का मैंने आपको नेक्स्ट यूज क्या बताया था, इट इज यूज टू इन्वोक इमीडिएट पेरेंट क्लास मैथड। तो इमीडिएट पेरेंट क्लास मैथड में आपने अगर मैथड को ओवरराइड कर दिया है चाइल्ड क्लास में और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करोगे, तो ऑब्वियसली वो जो मैथड है पेरेंट क्लास वाला वो कॉल नहीं होगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं। आपने एक एनिमल क्लास डिक्लेयर करी जिसमें आपने एक ईट फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है। अब जो ईट फंक्शन है इसके अंदर आपने मैसेज डिस्प्ले किया हुआ है ईटिंग, ठीक है। अब इसका आपने एक चाइल्ड क्लास बनाया डॉग। डॉग में आपने ईट फंक्शन फिर से रीडिक्लेयर कर दिया, तो विच मीन्स ये वाला जो फंक्शन है ये क्या हो गया, ओवररिडन फंक्शन हो गया, ये ओवरराइड कर रहा है। अब क्या हुआ, अगर आप डॉग का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो डॉग का ऑब्जेक्ट बनाने पर ये क्या करेगा कि ईट फंक्शन को अगर आप कॉल करोगे तो ये अपना फंक्शन कॉल करेगा और आपको प्रिंट करके देगा ईटिंग ब्रेड। जबकि हमें चाहिए क्या, एनिमल का आउटपुट चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सुपर डॉट ईट, ये मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया हुआ है वर्क। वर्क के अंदर मैंने कॉल किया हुआ है सुपर डॉट ईट। सुपर का मतलब है इमीडिएट पेरेंट क्लास, दैट इज एनिमल, एंड डॉट ईट, इसका मतलब एनिमल के अंदर आपने जो ईट फंक्शन कॉल किया हुआ है, ईट फंक्शन जो बनाया हुआ है उसको कॉल कर रहा है। एंड देन यू हैव रिटन बाक, बाक इसका अपना फंक्शन है तो इसने अपने फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। अब अगर मैं डी का ऑब्जेक्ट बना करके वर्क को कॉल कर रही हूँ तो मुझे आउटपुट क्या मिलना चाहिए। वर्क को अगर कॉल किया तो उसने सबसे पहली लाइन कॉल करी हुई है सुपर डॉट ईट। सुपर डॉट ईट का मतलब ये प्रिंट करेगा आपको ईटिंग। उसके बाद आपने कॉल किया हुआ है बाक, तो बाक का मतलब ये आपको प्रिंट क्या करके क्या देगा, बाकिंग। सो दिस शुड बी द आउटपुट if you are calling the parent class method by using the super keyword. Now let's see the third use of super keyword. मैंने आपको बताया सुपर को अगर आप फंक्शन ब्रैकेट के साथ यूज करते हो then it is used to invoke immediate parent class constructor. So let's see, आपने क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है एनिमल, ठीक है। Now let us assume that कि ये जो एनिमल कंस्ट्रक्टर है ये हमें ऑलरेडी पता है कि अगर पेरेंट क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर है तो इनहेरिटेंस के वक्त वो चाइल्ड क्लास में इनहेरिट होकर के नहीं आएगा। तो लेट्स टेक वन एग्जांपल कि आपने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है इंटीजर ए। इंटीजर ए इज अ वेरिएबल। अब आप यहाँ पर कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर रहे हैं और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने क्या बनाया हुआ है, एक पैरामीटर पास किया हुआ है। नाउ द नेम ऑफ पैरामीटर इज ऑल्सो सेम। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पैरामीटर का नाम और क्लास के वेरिएबल का नाम सेम है तो क्लास का वेरिएबल रिप्रेजेंट करने के लिए आप कीवर्ड यूज करते हो दिस। तो मेरे को पैरामीटर की वैल्यू जो है वो क्लास के वेरिएबल में असाइन करनी है। तो मैंने क्लास का वेरिएबल कैसे डिफाइन किया, दिस डॉट ए इज इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पैरामीटर है इसकी वैल्यू क्लास के वेरिएबल में असाइन हो गई। अब मैंने यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया है, एनिमल इज क्रिएटेड, एंड मैं यहाँ पर ए की वैल्यू डिस्प्ले कर रही हूँ। तो दिस डॉट ए को मैं डिस्प्ले कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये है मेरी पेरेंट क्लास। नाउ कम टू द चाइल्ड क्लास। अब चाइल्ड क्लास में आपने क्या किया हुआ है कि कंस्ट्रक्टर बनाया है लेकिन ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो कॉल करना पड़ेगा वरना ये चलेगा नहीं। तो हमने सुपर कीवर्ड यूज किया किसके अंदर, सुपर फंक्शन यूज किया किसके अंदर, कंस्ट्रक्टर ऑफ द चाइल्ड क्लास, और यहाँ पर मैं एक वैल्यू पास कर रही हूँ 10। अब क्या होगा कि सुपर कीवर्ड डिफाइन कर रहा है ए, एनिमल कंस्ट्रक्टर, और एनिमल कंस्ट्रक्टर के अंदर जो पैरामीटर है वो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 10। तो इसका मतलब एक्चुअली ये किसे कॉल कर रहा है, ये हो रहा है एनिमल, और एनिमल के अंदर पास हो रहा है 10। तो ऑब्वियसली ये 10 कहाँ गया, ये इस वाले ए में गया, और ये वाला ए किस में असाइन हो गया, एनिमल के ए में असाइन हो गया, ठीक है।
और इसके बाद मैंने एक मैसेज डिस्प्ले किया हुआ है डॉग इज क्रिएटेड। ओके, अब मैंने डॉग का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया और यहां पर मैंने अब मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, दैट आई नीड टू एनालाइज। तो जब आपने डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, डी कंस्ट्रक्टर को इसने कॉल किया, सबसे पहले आपने मैसेज लिखा हुआ है सुपर 10। सुपर 10 का मतलब ये किसे कॉल कर रहा है, ए एनिमल के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। आपको आउटपुट मिलना चाहिए एनिमल इज क्रिएटेड, ठीक है, एंड 10। ये आपका पहला आउटपुट होना चाहिए। अब इसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डॉग इज क्रिएटेड। तो मेरे को नेक्स्ट मैसेज क्या मिलना चाहिए, डॉग इज क्रिएटेड। दिस मैसेज शुड आई शुड गेट। तो इस प्रोग्राम को हम चला के देख लेते हैं और देखते हैं कि हमें ये आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो लेट्स आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। ओके, तो ये है हमारा प्रोग्राम, दिस इज माय प्रोग्राम। थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। ये प्रोग्राम है, एनिमल क्लास को बंद कर देते हैं यहाँ पर। ये कंस्ट्रक्टर बंद हो गया, ओके, ये क्लास बंद हो गई। देन इट इज अ डॉग कंस्ट्रक्टर, डॉग क्लास बंद हो गई। फिर ये टेस्ट सुपर क्लास है, आपने ये करना है। आपके हिसाब से आउटपुट ये मिलना चाहिए आपको, है ना। तो लेट्स सेव दिस प्रोग्राम। प्रोग्राम को किस नाम से सेव करेंगे, टेस्ट सुपर 3 के नाम से सेव करेंगे। इस क्लास को पब्लिक बना देते हैं। अब नाउ लेट्स सेव दिस प्रोग्राम, टेस्ट सुपर 3 डॉट जावा। एग्जीक्यूट करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। ओके, सो जावा सी, ओके, ब्रैकेट का प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। सो आई विल करेक्ट ऑल दी ब्रैकेट्स। आई होप ठीक हो जाना चाहिए ये। अब इलीगल कैरेक्टर कहाँ पर आ रहा है, डॉग इज क्रिएटेड में, डॉग इज क्रिएटेड में इलीगल कैरेक्टर दे रहा है। Let's try to run this program. No, it is still. ओके, ढेर सारे लीगल कैरेक्टर्स ऐड हो गए हैं। तो एक बारी क्लास को फिर से बना लेते हैं। मैं शेयर कर रही हूँ, मैं फिर से एक बारी प्रोग्राम लिख रही हूँ। तो एक बार इसको देख लेते हैं। क्लास एनिमल टीचर ए, एनिमल का कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं because the constructor is having a same name parameter. That is why we are using a keyword this dot a, और यहाँ पर हम मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं system dot out dot println created and plus a। एनिमल को बंद कर दिया। Now we'll create a class dog, dog extends animal, animal, ठीक है। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, डॉग के लिए कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मेरे को कंस्ट्रक्टर कॉल करना है एनिमल का, पेरेंट का। यहाँ पर हमने ये कर दिया एंड देन डॉग क्रिएटेड, मैसेज डिस्प्ले कर दिया हमने, ठीक है। डॉग को बंद कर दिया। अब यहाँ पर हम बना रहे हैं क्लास
टेस्ट सुपर 3 पब्लिक बना देते हैं इसे, पब्लिक क्लास टेस्ट सुपर 3. Okay, now public static main string AR, then we will create the object of dog class, new dog. तो अभी मेरे को आउटपुट मिलना चाहिए है एनिमल क्रिएटेड 10 and dog created. So let's share the command prompt. Done. Now we will try to execute this program. See, animal created 10 and dog created. So basically जो super keyword हमने यहाँ पर use करा था, जो super function हमने use करा था, this function was used to call the animal constructor, and this 10 will pass to the parameter, and this parameter is finally assigned to the class variable. ठीक है. Now go back to the PPTs again. Okay. तो सुपर कीवर्ड तक हमने देख लिया, तीनों यूज देख लिया सुपर कीवर्ड के. तो ये पूरा प्रोग्राम हमने एक फिर से बनाया हुआ है, एक और मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है, एक क्लास बनाई हुई है पर्सन. इस पर्सन क्लास के अंदर हमने क्या किया हुआ है, प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करी हुई है, इंटीजर आईडी, स्ट्रिंग नेम, फिर एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है. तो यू कैन सी मैंने दिस कीवर्ड यूज करा हुआ है, मतलब कि जो पैरामीटर का नाम है वो क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल के सेम था, तो इसलिए क्लास वेरिएबल आपने दिस से डिफाइन किया हुआ है. फिर आपने एक चाइल्ड क्लास बनाई हुई है एम्प्लॉय. एम्प्लॉय क्लास का आपने पैरामीटर बनाया और पैरामीटर को कंस्ट्रक्टर बनाया और कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड है. यहाँ पर देखिए मैंने पास किया हुआ है सुपर आईडी कॉमा नेम. इसका मतलब किसे कॉल कर रहे हैं, पर्सन के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं. आईडी इस आईडी में चला जाएगा, नेम इस नेम में चला जाएगा. तो आप बेसिकली पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं और उसके बाद ये सैलरी इसका अपना प्रॉपर्टी है. देन डिस्प्ले में आपने तीनों को डिस्प्ले करवा दिया है. एंड इन दिस वे यू आर डिक्लेयरिंग दी ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय. कंस्ट्रक्टर कॉल करा है, कंस्ट्रक्टर के जो पैरामीटर्स हैं वो पर्सन में भी जा रहे हैं और एम्प्लॉय में भी जा रहे हैं. ठीक है. अब आ जाते हैं फाइनल क्लास और मेथड का मतलब क्या होता है. अगर आपने किसी भी मेथड को फाइनल डिक्लेयर किया हुआ है तो इसका मतलब यू कैन नॉट ओवरराइड दैट मेथड इन दी चाइल्ड क्लास. जैसे आपने यहाँ पर एक शो मेथड बनाया हुआ है जिसके पहले आपने यहाँ पर फाइनल कीवर्ड यूज किया हुआ है. सो विच मीन्स यू कैन नॉट ओवरराइड दिस फाइनल मेथड. तो अगर आप यहाँ पे void शो लिखने की कोशिश करोगे तो आपको कंपाइलर एरर मिलेगी. सो फाइनल मेथड कैन नॉट बी ओवररिडन. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एक चीज और बताई थी, अगर मेथड स्टैटिक है तो भी आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते हो. ठीक है. तो यहाँ पर इसका क्रक्स देख लेते हैं. स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी ओवरराइड. फाइन. ओके. एंड फाइनल मेथड कैन नॉट बी ओवरराइड. ओके. अब आ जाइए यहाँ पर फाइनल क्लास का क्या कर सकते हैं. फाइनल क्लास का मतलब क्या है, अगर आपने किसी भी क्लास को फाइनल बनाया हुआ है देन दैट क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड, विच मीन्स आप उसको पेरेंट क्लास नहीं बना सकते, उसकी आप चाइल्ड क्लास क्रिएट नहीं कर सकते हो. ठीक है. तो अगर आपने किसी भी क्लास को क्या बनाया हुआ है, फाइनल बनाया हुआ है, तो वो क्लास आपकी इनहेरिट नहीं हो सकती है. अगर आपने किसी मेथड को फाइनल बनाया हुआ है तो वो ओवरराइड नहीं हो सकता. अगर आपने किसी मेथड को स्टैटिक बनाया हुआ है तो वो भी ओवरराइड नहीं हो सकता. ठीक है. सिमिलरली अगर आपने किसी मेथड को प्राइवेट बनाया हुआ है तो वो ओवरराइड नहीं हो सकता है. ठीक. और आपको ध्यान रखना है, अगर आप मेथड ओवरराइडिंग यूज कर रहे हैं तो मेथड का नाम, मेथड का रिटर्न टाइप और मेथड के पैरामीटर तीनों सेम होने चाहिए एज ए पेरेंट क्लास. सो एट द एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओवरराइडिंग ऑफ द मेथड्स. ठीक है. एंड ओवरलोडिंग ऑफ द मेथड्स. तो ये आपने डिफरेंस देख लेना है. There are 3 major differences और यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है difference between method overriding and method overloading. Right? So in this way your second unit is finished, and if you face any problem then we can discuss with it.